এই মুহূর্তের সবচাইতে বড় খবর, আসামে ঘুষপেটিদের উপর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরকারের অ্যাকশন শুরু। এনআরসি শুরু আসামে। আসামে 28 জন মুসলিমকে অবৈধভাবে যারা বসবাস করছিল তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হলো। এই মুহূর্তের সবচাইতে বড় খবর, আসামে হেমন্ত সরকারের অ্যাকশন শুরু। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরকারের অ্যাকশন শুরু এনআরসি নিয়ে। এখনকার বিশেষ খবর, আসামে ঘুষপেটিদের উপর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরকারের অ্যাকশন শুরু। বারপেটাতে 28 জন মুসলিম ব্যক্তিকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হলো। ফরেনার ট্রিব্যুনাল 28 জন মুসলিমকে মানল বিদেশি। ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো নিয়ে শুরু হলো রাজনীতি। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরকারের মুসলিম ঘুষপেটিদের উপর অ্যাকশন শুরু। আসামের বারপেটা থেকে 28 জন মুসলিমকে বিদেশি নাগরিক হওয়ার অভিযোগে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হলো। বারপেটাতে বিদেশি ন্যায় আসামের বরপেটাতে বিদেশি ন্যায় অধিকরণ 28 জন ব্যক্তিকে হিরাসতে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। বিদেশি ন্যায় অধিকরণ মেনেছে যে ওই 28 জন ব্যক্তি মুসলিম বিদেশি। যে 28 জনকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে 9 জন মহিলা এবং 19 জন পুরুষ। এই সমস্ত 28 জনকে আসামের গোয়ালপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হলো। যখন এই ফয়সালা আসলো তখনই আসামে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। এই ফয়সালায় মুসলিম আসাম স্টুডেন্ট আপত্তি করেছেন। ইউনিয়নের লিডার আশিক রাব্বানি বলেন, এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল সিদ্ধান্ত, এই ফয়সালা সম্পূর্ণ একটা ভুল সিদ্ধান্ত। আশিক রাব্বানি তিনি আরও বলেন, এর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করব। জি নিউজের খবর অনুযায়ী লম্বা কানুনি প্রক্রিয়ার পর এবং অনুসন্ধানের পরে জানা গেছে যে 28 জন মুসলিম অনেক দিন ধরে ভারতবর্ষে অবৈধভাবে বাস করছিল। যখন ওই 28 জনকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছিল ওই সময় ভারী সংখ্যার মানুষ ওখানে জমায়েত শুরু হয়ে যায়। তারপর ওখান থেকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে সমস্ত মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। তারপর সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামানো হয়। যে 28 জন মুসলিমকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে ওদের কাছে কানুনি অধিকার এখনও আছে। এই সমস্ত মুসলিম 28 জন তারা হাইকোর্টে এই ফয়সালার বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। এর জন্য এই মামলায় হাইকোর্টের উকিল সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন এনআরসি। জানিয়ে রাখি আপনাদের, এনআরসি অর্থাৎ ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেন্স, এর জন্য দেশে অবৈধভাবে থাকা বিদেশিদের বাইরে পাঠানোর প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আর এখন এই কাজ চলছে আসামের বরপেটা এলাকায়। আপনাদেরকে বলি, আসামে যখন এনআরসি লাগু হয়, এর পূর্বে যখন আসামে এনআরসি লিস্ট জারি হয়েছিল তখন 40 লক্ষ মানুষ যাদের ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। আসামে এনআরসিতে সামিল হওয়ার জন্য মোট 3,29,00,000 মানুষ আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে 2,89,00,000 মানুষের নাম এনআরসি লিস্টে এসেছিল, বাদ গেছিল 40 লক্ষ মানুষ। আসামে লম্বা সময় থেকে বিদেশি লোক আসা নিয়ে পেরেশান ছিল আসাম সরকার, আর এই বিষয় লম্বা সময় ধরে চলছিল। অধিকাংশ বিদেশি পাশের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের, আর তার জন্যই এই তদন্ত আরও জোরালো হয়। সূত্র জি নিউজ, ইন্ডিয়ান টিভি চ্যানেল, ইন্ডিয়ান ইউটিউব চ্যানেল জি নিউজ চ্যানেলে এই খবরটি কালকে চলছিল। জি নিউজের খবর অনুযায়ী সম্পূর্ণ খবর আপনাদেরকে পড়ে শোনালাম। 28 জন মুসলিমকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে আসাম সরকারের পক্ষ থেকে। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন সবাই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন আর চারিদিকে ছড়িয়ে দেবেন। आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। अदालत ने 28 लोगों को विदेशी घोषित किया और इन लोगों को डिटेंशन कैंप भेजा गया। बड़ी दुख की बात है कि ये जो लोग हैं इनकी फैमिली के कुछ लोग इंडियन है और कुछ लोग विदेशी घोषित हुआ है। तो अभी इन लोगों को अपील की जरूरत है।
तो असम के दल संगठन को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये गरीब लोग हैं, पैसे के लिए ये लोग हो सकते हैं उनको इंसाफ ना मिले, तो इन लोगों के इंसाफ के लिए अभी आगे आके अपील के लिए इन लोगों को हेल्प करें। हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर असम में एक भी बांग्लादेशी है वो लोग को आप दिखा दीजिए कहाँ पे है और कहाँ से आया है, उन लोगों का पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए। आज भी जो 28% लोगों को आप अपने फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में डाउटफुल सिटीजन कहाँ है, वो लोग भी भारतीय नागरिक है। हम आपको चैलेंज करते हैं, हाँ आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, वो लोगों को न्याय मिलेंगे, क्योंकि ये लोग रियली नियम है। देखिए, ये जो कल जो हरकत हुई इसकी पूरी जिम्मेदारी आसाम बॉर्डर पुलिस के ऊपर आती है, क्योंकि आसाम बॉर्डर पुलिस बहुत ही बायस्ड और रैंडमली किसी को भी पिक कर लेके उनको डिक्लेयर करती कि ये फॉरेनर्स हैं, और फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस जाता, और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का भी जो तरीक़ा जो है वो बड़ा एक्सक्लूजनरी है, आर्बिट्ररी है। और तीसरी बात यह है कि सेक्शन 9 ऑफ जो फॉरेनर्स का एक्ट है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जिन पे आर्बिट्रर्स पे लगाया जाता है कि ये भारत के नागरिक नहीं, उन पे आ जाता है। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में आप थोड़े दिन पहले रहीम अली का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पूरा प्रोसेस ग्रॉस इनजस्टिस है, और इसीलिए ये आसाम की बॉर्डर पुलिस और फिर वहाँ का जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है इनका जो तरीक़ा है बड़ा आर्बिट्री है। और इसी की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि आसाम में एक फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो एक आदमी को बोलते ये इंडियन सिटीज़न नहीं है, कैसा हो सकता है बोलिए। फैमिली में अगर पूरे होना एक को बोलते, और फिर एक जगह पर इन 28 लोगों को जमा करना वहाँ पर, और जमा करके एक तमाशा करना और उनकी चीख पुकार की आवाज़ें जो सबको फ़िक्रमंद और परेशान कर रही है। और आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर से सेंसस शुरू करेगा, और सेंसस के साथ नरेंद्र मोदी NPR NRC करेंगे। जो स्टेट्स जैसा तेलंगाना है, यहाँ पर तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में यूनानिमस के सेंसस होगा मगर NPR NRC नहीं होगा, मगर मोदी ये चाहते हैं कि सितंबर में सेंसस होगा तो NPR NRC के साथ कराया जाए। अब जब NPR NRC होगा तो यही नज़ारे पूरे मुल्क में नज़र आएंगे हमको, खुदा ना खास्ता। नहीं, वो सही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सेक्शन 9 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ, किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा दो कि उन्हें भारत के नहीं है, उनके ऊपर आता। दूसरा है कि आसाम की जो बॉर्डर पुलिस है रैंडमली किसी को भी उठा सकती है और उनको बोलते कि इन्हों सिटीज़न नहीं है। और फिर 2017 में यही ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू नहीं करे, गवर्नमेंट वो जवाब दाखिल करी है बोल करके वो लोग काम सही नहीं कर रहे। काम सही नहीं कर रहे का मतलब क्या है कि ज़्यादा लोगों को आप लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे कि ये इंडियन सिटीज़न नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आर्बिट्री है। और रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रहीम अली का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस इनजस्टिस है पूरा जो इनका तरीक़ेकार है, और वो बेचारा मर गया जब जजमेंट आया। तो ये बड़ा ही अच्छा, इनको आप अब लिख जाके डिटेंशन में रखेंगे। डिटेंशन में जब रखेंगे 2 साल रखेंगे उनको वहाँ पर, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते ना बांग्लादेश को। उनको चलिए डिपोर्ट करके दिखाइए बांग्लादेश को, बांग्लादेश नहीं डिपोर्ट, बांग्लादेश एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इन लोगों को। अब डिटेंशन में रहेंगे, डिटेंशन में उनकी बेल होना या तो 6 महीने में होगा या फिर जो भी हो कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर 2 साल वहीं रहेंगे वो लोग अपनी फैमिली से। ये लोग, इनके दूसरे फैमिली मेम्बर जो 28 है, इनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स पूरे इंडियंस हैं। ये कैसा है बताइए आप।